So आज relationship between overall and individual phase transfer units पढ़ेंगे and then example and then distillation का topic है हमारे पास. The relationship between the overall heights of transfer units and heights of individual phases transfer units may be established in a manner similar to that for the overall and individual phase mass transfer coefficients. By definition of height of transfer units, we can get the equation 5.78 for gas phase resistance controlling mole fraction of I component is approximately equal to the equilibrium mole fraction. So we get equation 5.79 by substituting yi with the y steric. Furthermore, for dilute solutions, 1 minus x subscript im divided by 1 minus y steric subscript m for dilute solutions may be taken as unity without any serious error, and height of transfer unit for the gases becomes equation 5.80. That is mgm over lm ht naught g equals to htg plus htl. Because we have substituted this part equals to 1 for dilute solutions. Similarly, if the resistance to mass transfer is essentially in the liquid phase, we get this form. Where HTG and HTL are the heights of transfer units based on gas phases and liquid phase coefficients, and HT0G and HT0L is the are the overall heights of transfer units on gas phase and liquid phase coefficients. Now, example 5.4. 5.4 is the determination of the packing height by using the concept of height and number of transfer units. 800 kg per hour of an air carbon tetrachloride mixture containing 5 mole % CCl4 is to be scrubbed in a counter current packed tower to recover 90% carbon tetrachloride. A non-volatile carbon tetrachloride free oil will be used as a solvent, and the solvent rate will be 820 kmol per hour, and the molecular weight of the carbon tetrachloride free oil is given, that is 260. The mass transfer coefficient KYA has been estimated to be 25 kmol per hour meter cube ATM. Determine the number of transfer units required and hence the packed height of the tower. The equilibrium relationship is given by y steric equals to 20x, where y steric and x are the mole fractions of carbon tetrachloride in gas and liquid respectively. The total pressure is 1 atm. हमारे पास total pressure 1 atm दिया हुआ है और हमने find out करना है packing height by using the concept of height and number of transfer unit concept. यानी HTG और जो हमारे पास एन का जो हम रिलेशनशिप यूज करते हुए हमने पैकिंग हाइट दैट इज जेड हमने फाइंड आउट करनी है. हमारे पास 800 kg पर आर जो है एयर कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्सचर जो है गिवन है, दैट इज अ फ्लो रेट ऑफ द एयर कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्सचर. इसमें हमारे पास 5 मोल % कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दैट एक्स इज 0.05 और ये जो है स्क्रब्ड हो रहा है काउंटर करंट पैक टावर में, दैट इज हमारे पास जो है काउंटर फ्लो हो रहा है इसमें, जिसमें हमारे 90% कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो रिकवर हो रहा है. ओके, नॉन वोलेटाइल कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्री ऑयल मिक्सचर विल बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट के तौर पर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्री ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं और इसका फ्लो रेट 820 kmol per hour है. मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट 25 kmol per hour मीटर क्यूब 18 दिया हुआ है. बस
इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है y स्टेरिक इक्वल्स टू 20x, जो हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द y स्टेरिक वैल्यू। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटरिंग गैस जो है हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि एंटरिंग गैस में हमारे पास क्या है, एंटरिंग गैस में हमारे पास एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और एयर है, सही। तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो गिवन है 154, सही। और हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन जो था दैट वाज 0.05 ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो है क्या होगा, YCCl4 MCCl4 प्लस, सही है। हमारे पास जो एंटरिंग गैस थी उसमें हमारे पास क्या था, CCl4 था और एयर था। अब हम एयर की बात करेंगे। एयर में क्या है प्लस, एक तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है एयर का इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। फर्दरमोर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर हमें पता है 28.92 है। सो हम जो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में वैल्यूज, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटरिंग गैस आ जाएगी 35.17। देन हम GM फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास 800 kg 800 kg पर आर हमारे पास एयर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर का फ्लो रेट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें GM फाइंड आउट करना होगा, दैट इज हमारे पास वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी होगी, मास वेलोसिटी ऑफ द गैस। सो हम जो है ए कार्बन मिक्सचर का जो फ्लो रेट है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर कार्बन मिक्सचर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कार्बन मिक्सचर यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट किया है, और जो हमारे पास फ्लो रेट है एयर कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्सचर उसका, वो हमें फ्लो रेट डेटा में गिवन था, सही। तो हमने GM फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 22.75 किलोमोल पर आर मीटर स्क्वायर। G'(m) भी हम फाइंड आउट करेंगे। वो हम इसका करेंगे, हमारे पास G'(m) इससे करेंगे हमारे पास 90, एक तो हमारे पास 5% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सही। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 0.95। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 22.75, दैट इज GM। तो वहाँ पर G'(m) आ जाएगा, दैट इज 21.61 किलोमोल पर आर मीटर स्क्वायर। सॉल्वेंट रेट हमारे पास गिवन है, दैट इज 820 किलोमोल पर आर मीटर स्क्वायर इन द एग्जाम्पल। फर्दरमोर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 260 इन द एग्जाम्पल। हमारे पास जो है 5% गिवन था, दैट वाज 0.05, that was the mole fraction of the carbon tetrachloride in the entering gas mixture, ये carbon tetrachloride mixture है। So हम कैपिटल Y1 फाइंड आउट कर सकते हैं, that is small y1 over 1 minus y1, that is 0.05 divided by 1 minus 0.05। देन हम जो है Y2 फाइंड आउट कर सकते हैं। Y2 हम किस तरह करेंगे, 1 माइनस 0.9 जो हमारे पास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो रिकवर हो रही थी, सही। 1 माइनस रिकवर्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन इनटू कैपिटल Y1। सो हमारे पास कैपिटल Y1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास Y2 आ जाएगी, दैट इज 0.00526, which is approximately equals to Y2. Material balance
हम जो है मटेरियल बैलेंस करेंगे। सॉल्वेंट का फ्लो रेट इंटू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू g प्राइम m y1 माइनस y2। सॉल्वेंट का फ्लो रेट वाज 820, x1 हमें नहीं पता, x2 हमारे पास जो है सॉल्वेंट एट द एग्जिट हम कंसिडर कर रहे हैं 0। जी प्राइम एम हमने फाइंड आउट किया था, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y1 y2 की वैल्यूज भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास x1 आ गया, दैट इज 0.125 which is approximately equals to small x2. Since both equilibrium and operating lines are straight, equilibrium और हमारे पास ऑपरेटिंग लाइन्स हमारे पास स्ट्रेट हैं, सो हम जो है लिख सकते हैं dy1 इक्वल्स टू y1 माइनस y1 स्टेरिक, और हमारे पास पता है कि y स्टेरिक किसके इक्वल है, 20x के इक्वल है, जो कि हमारे पास एग्जांपल में ये रिलेशनशिप दिया हुआ था बिटवीन इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन एंड द मास फ्रैक्शन। सो हमारे पास इक्वेशन होगी dy1 इक्वल्स टू y1 माइनस 20x1। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x1 की वैल्यू हमारे पास 0.00125 थी और y1 की हमारे पास 20 थी, सॉरी y1 की 0.05 थी और जो x1 की हमारे पास 0.00125 थी, तो हमने d1 कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.025। हम d/2 कैलकुलेट कर सकते हैं y2 माइनस y2 स्टेरिक से। y2 हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 0.0526। देन हमारे पास जो y2 जो है एट इक्विलिब्रियम वुड बी 0, सो हमने 0 यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास d/2 आ गया, दैट इज 0.00526। ln हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज dy1 माइनस dy2 ओवर ln dy1 ओवर dy2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे dy1 dy2 की, तो हमारे पास आ जाएगा dy/lm, that is 0.01266। number of transfer unit जो है in the gas phase, that is overall number of transfer unit at the gas phase can be written as y1 minus y2 over dy/lm, that is delta y lm। so वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इन गैस फेज आ जाएगा, दैट इज 3.5। हाइट ऑफ ट्रांसफर, ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय जीएम ओवर KYA इनटू प्रेशर। प्रेशर हमारे पास जो है टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर गिवन था एग्जांपल में 1 atm, बाकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, तो हमारे पास जो है ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट इन द गैस फेज आ गया, दैट इज 0.885 मीटर। हम फिर पैक्ड हाइट जो है टावर की फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज z। हमें पता है z का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट एंड नंबर ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट हम जो है लिख सकते हैं, दैट इज z इक्वल्स टू st0g इंटू nt0g। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है ओवरऑल पैक्ड हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, दैट इज 3.12 मीटर्स। Now distillation. Distillation हमारे पास एक यूनिट ऑपरेशन है which involves separation of a vaporizable component from a multi-component system and subsequent condensation of vapors। हमारे पास जो है डिस्टिलेशन हमारे पास यूनिट ऑपरेशन है, यानी इसमें हमारे पास जो है कोई जो है केमिकल कन्वर्जन नहीं हो रही, सही, और यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन हो रही है वेपराइजेबल कंपोनेंट की, यानी वो कंपोनेंट जो हमारे पास वेपराइज्ड फॉर्म में आ सकता है, सही, उसकी हमारे पास जो है सेपरेशन हो रही है, कहाँ से, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम से, और हमारे पास सब्सिक्वेंट
यानी साथ साथ में हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स भी हो रही है। डिस्टिलेशन वो यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हमारे पास जो है वेपराइजेशन भी हो रही है और साथ में हमारे पास कंडेंसेशन भी हो रही है वेपर्स की। और ये हमारे पास सेपरेशन है ऑफ द वेपराइजेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। यानी मल्टी कंपोनेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मिक्सचर है बेंजीन, टोलीन, ज़ाइलीन का, और अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें से बेंजीन को हम जो है सेपरेट करना, सही, तो क्या हो गया? बेंजीन, टोलीन, ज़ाइलीन का जो मिक्सचर है दैट इज मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। हम उस बेंजीन को वेपराइज करना चाह रहे हैं, सही, तो हमारे पास वेपराइजेबल कंपोनेंट क्या होगा? जो सेपरेट, जिसकी सेपरेशन चाह रहे हैं वो हमारे पास वेपराइजेबल कंपोनेंट हमारे पास बेंजीन है। देन हम उसकी जो है जैसे हम वेपराइज करेंगे देन उसके साथ जैसे वो टॉप पे जाएगा उसके साथ जो है कंडेंसर लगा होगा, तो वहाँ से हम कंडेंसेशन करेंगे वेपर्स की, ताकि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अचीव हो जाए जो हमें डिजायर्ड जो प्रोडक्ट चाहिए। इन दिस केस जो मैं एग्जांपल दे रही थी उसमें बेंजीन मुझे चाहिए तो हमारे पास जो टॉप पे हमने बेंजीन। Distillation is the process of separating the component substances from a liquid mixture by selective evaporation and condensation. Distillation is defined as the separation of a component of a liquid mixture by a process involving vaporization and subsequent condensation at another place. ये different definitions हैं distillation की। more or less ये एक ही बात को जो है बता रही है कि हमारे पास distillation operation जो है वो क्या है? separation of component है फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर, जिसमें हमारे पास वेपराइजेशन और कंडेंसेशन जो है हो रही है। कंडेंसेशन हमारे पास अनदर प्लेस पे हो रही है, यानी जहाँ पे हमारे पास वेपराइजेशन हम कर रहे हैं उसी प्लेस पे हम कंडेंसेशन नहीं कर रहे, बल्कि अनदर जो हमने इक्विपमेंट जो है वो साथ में अटैच किया। Furthermore, other definitions of distillations are also presented in this slide. Distillation is the method of separating the components of a solution, which depends upon the distribution of the substances between a gas and a liquid phase, applied to cases where all the components are present in both the phases. Distillation हमारे पास मेथड है जहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को on the distribution of the substances. For example, हमारे पास जो है अगर कोई सब्सटेंस जो है हमारे पास लिक्विड और गैस फेज में दोनों में मौजूद है फीड पे, सो हम उसे जो है उसकी सेपरेशन करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड प्योरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये इस ऑपरेशन को भी हम डिस्टिलेशन कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? सब्सिक्वेंट हमारे पास एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों। Instead of introducing a new substance into the mixture in order to provide the second phase, as is done in the gas absorption or desorption, the new phase is created from the original solution by vaporization or condensation. इसमें हम जो सेकेंड फेज को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, यानी हम इसमें कोई अलग से हम सॉल्वेंट ऐड नहीं कराते इन ऑर्डर फॉर द, यानी हम सेपरेशन के लिए कोई थर्ड कंपोनेंट हम जो है इंट्रोड्यूस नहीं कराते another component in order to get the required separation. जबकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन में और डिसॉर्प्शन में क्या होता है? सिंपली हम जो सॉल्वेंट को जो ऐड कराते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्यूट फ्रॉम द मिक्सचर. Difference between distillation and other operations. In the separation of a solution of common salt and water, the water can be completely vaporized from the solution without removal of salt, since the salt is quite non-volatile at the prevailing conditions. This is the operation of evaporation. अगर हमारे पास सेपरेशन जो है कर रहे हैं सोल्यूशन की, कौन सी सोल्यूशन की? कॉमन सॉल्ट और वाटर के सोल्यूशन की। वाटर इसमें हमारे पास कम्प्लीटली वेपराइज हो जाता है सोल्यूशन से विदाउट द रिमूवल ऑफ सॉल्ट। सही, सॉल्ट हमारे पास जो है बॉटम में अचीव हो गया और हमारे पास जो वाटर है वो वेपराइज्ड हो गया इनटू वेपर्स।
सो सिंस बिकॉज हमारे पास सॉल्ट जो है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है और वाटर जो है हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है, प्रोवाइडेड हमने हीट प्रोवाइड की है टू द सॉल्ट सोल्यूशन। इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, एवापोरेशन, जिसमें हमारे पास सिंपली क्या हुई है, सिर्फ हमारे पास जो लिक्विड जो था वो कंपोनेंट वो वेपराइज्ड हुआ है, सही है। फिर हमने आगे से क्या नहीं किया, हमने आगे से जो है उस वेपर को जो है इनटू लिक्विड दोबारा अचीव नहीं किया बाय कंडेंसेशन ऑपरेशन से, सही। Distillation, on the other hand, is concerned with the separation of solutions where all the components are appreciably volatile. For example, और distillation जो है हम कह सकते हैं separation of solutions, जहाँ पे all the components हमारे पास appreciably हमारे पास volatile हैं, यानी हमारे पास जो इसमें जो है volatile component अब वो होता है जो हमारे पास easily जो है vaporized हो जाए into the vapor form। और volatility जो है between the components जो है, यानी अगर हम बेंजीन, टॉलिन, सालीन जो का मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल एबीसी मिक्सचर है, अगर हम सिंपल एबीसी मिक्सचर को कंसिडर करें, सो ए जो हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है एज कंपेयर टू बी वोलेटाइल बी कंपोनेंट, सही, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। और बी जो है हमारे पास जो है मोर वोलेटाइल है एज कंपेयर टू द सी कंपोनेंट। सो इस केस में क्या होगा, हमारे पास ए सबसे पहले जो है वेपर फॉर्म में कौन जाएगा, यानी वोलेटाइल सबसे पहले कौन होगा, ए कंपोनेंट। देन हमारे पास जो है बी कंपोनेंट जो है वेपर फॉर्म में जाएगा। देन हमारे पास सी कंपोनेंट जाएगा वेपर फॉर्म में। एंड देन उनकी सब्सिक्वेंट जो है कंडेंसेशन होगी एट द रिस्पेक्टिव प्लेस। और जो सबसे लाइटर कंपोनेंट जो हमारे पास सबसे वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास सबसे टॉप ट्रे पे अचीव होगा, और जो सबसे लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास टुवर्ड्स द बॉटम हमारे पास अचीव हो रहा होगा। Consider the separation of the components of a liquid solution of ammonia and water. By contacting the ammonia water solution with air, which is essentially insoluble in the liquid, the ammonia can be stripped or dissolved by absorption and desorption processes. But the ammonia is then mixed with water vapor and air and is not obtained in pure form. Consider कर रहे हैं हम separation of the components of a liquid solution of ammonia and water. अमोनिया वाटर का जो है सोल्यूशन है, और सोल्यूशन की हम सेपरेशन करेंगे बाय कंटेक्टिंग द अमोनिया वाटर सोल्यूशन विद एयर, जो कि हमारे पास इनसॉल्युबल है इन द लिक्विड। द अमोनिया जो है हमारे पास स्ट्रिप्ड ऑफ हो रही है, यहाँ पे हमारे पास डिसॉल्व्ड हो रही है बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेसेस। देन हमारे पास जो है अमोनिया जो है उसे हम मिक्स कर रहे हैं विद वाटर वेपर एंड एयर एंड इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म। इसमें हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन अचीव हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देन अमोनिया को मिक्स करा रहे हैं विद वाटर एंड एयर, बट द अमोनिया इज देन मिक्स विद द वाटर एंड वेयर एंड इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म, हमारे पास प्योर फॉर्म में अचीव नहीं हो रही। अगर हम जो है अमोनिया को जो है डिसॉल्व करा रहे हैं फ्रॉम अमोनिया वाटर सोल्यूशन से, सो इसका मतलब है इस केस में हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन जो ऑपरेशन है वो जो है एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन जो है रिकमेंडेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है इन द सेपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द अमोनिया वाटर एयर सोल्यूशन। Difference between distillation and other operations. हमारे पास difference है between the distillation and other operations. On the other hand, by application of heat, we can partially vaporize the solution and thereby create a gas phase consisting of nothing but water and ammonia.
पहले तो हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन बल्कि डिजॉर्प्शन कर रहे तो अमोनिया जो है हमारे पास डिजॉल्व हो रहा है, और मगर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अमोनिया जो है फिर से एयर और वाटर वेपर के साथ जो है मिक्स हो जाएगा। सो इस वजह से यानी वो मिक्सचर बनाने का फिर से अमोनिया एयर और वाटर मिक्सचर। सो अगर हम जो है वेपराइज करें उसी सोल्यूशन को, अमोनिया वाटर सोल्यूशन को, सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे गैस फेस जो है दे विल क्रिएट अ गैस फेस, जो हम क्रिएट करेंगे गैस फेस जिसमें हमारे पास क्या होगा, वाटर और अमोनिया होगा उस गैस फेस में। यानी हम अमोनिया वाटर जो सोल्यूशन है उसे हीट देके वेपराइज करा दें, and since the gas will be richer in ammonia than the residual liquid, a certain amount of separation will have resulted. So हमारे पास जो है अमोनिया जो है वो भी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द हीट वो हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हुई, वाटर भी हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हुआ, और हमारे पास जो गैस होगी दैट इज वेपर फॉर्म वो भी हमारे पास क्या होगी, रिचर हो जाएगी इन अमोनिया देन द रेसिडुअल लिक्विड। रेसिडुअल लिक्विड कौन सा हो गया, जो हमारे पास रिमेनिंग लिक्विड हो गया, जो हमारे पास कौन सा था, अमोनिया वाटर सोल्यूशन मिक्सचर था। सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेपरेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास अचीव होगी इन दिस केस जहाँ पे हमने वेपराइजेशन करें। बट appropriate manipulation of the phases of a repeated vaporization and condensations, it is then orderly possible to make as complete a separation as may be desired, recovering both components of the mixture in as pure as state as we wish. So हम वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन को रिपीटली इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड सेपरेशन हो जाएगी दोनों कंपोनेंट्स की डिजायर्ड प्योरिटी में by the subsequent repetition of the condensation, vaporization and condensation. So there are some applications of the distillation. हमारे पास जो है डिस्टिलेशन हम कर रहे होते हैं इन ऑर्डर ऑफ जहाँ पे हमारे पास सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स करने के लिए हम डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं। सब के हम क्लव्स eugenol comprises 72 to 90% vanillin acetyl eugenol। सेपरेशन ऑफ ड्रग्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं which is obtained from the plants and animal sources, vitamin A from the fish liver oil। Purification of organic solvents के लिए हम अचीव कर रहे होते हैं that is absolute alcohol 100%। Purification of drugs obtained from the chemical processes, इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमारे पास से भी यूज हो रही है ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सकें स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, spirit of ammonia, distilled water and water for injection। Quality control methods के लिए भी यूज करते हैं that is alcohol content in elixir 4 to 40%। Refining of petroleum products में भी यूज होती है that is petroleum ether 60-80। Recovery of solvents that is synthesis of the solvents, उसमें भी हमारे पास होती है डिस्टिलेशन। सर्टेन टर्मिनोलॉजी से जो हम यूज कर रहे होंगे रिपीटेटिवली इन डिस्टिलेशन। एक टर्मिनोलॉजी है बाइनरी मिक्सचर की। बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, जब हमारे पास टू लिक्विड्स जो है मिक्स्ड होते हैं टुगेदर, दे मे बी मिक्सेबल विद ईच अदर, यानी दे मे बी जो है हमारे पास मिक्स हमारे पास हो रहे होते हैं विद ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस। Such miscible liquid are known as binary mixture of liquids। यानी टू लिक्विड्स जो हैं जो दो लिक्विड्स हैं आपस में मिक्स हो रहे हैं, सही है, इन फॉर्मिंग miscible solution of the liquid mixture, so that is known as the binary mixture। Examples है binary mixture की ethanol and water, acetone and water, benzene and carbon tetrachloride। Ideal solution।
आइडियल सोल्यूशन हमारे पास इसे हम परफेक्ट सोल्यूशन भी कहते हैं. Ideal solution is defined as the one in which there is no change in the properties of components other than dilution when they mix to form a solution. Property of ideal solution. Property of ideal solution में हमारे पास क्या है? Total volume of solution is equal to the sum of volumes of each component. No heat absorbed and no heat evolved. No chemical reaction in between. And final volume of solution represents additive property of individual components and follow Raoult's law. Ideal solution क्या है हमारे पास? जहाँ पे हमारे पास change in properties of components जो है नहीं हो रही अदर देन डाइल्यूशन. से वहाँ पर डाइल्यूशन हो रही है व्हेन दे मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और वहाँ पर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स नहीं हो रही है. प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? क्या हमारे पास टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या होगा? इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ईच कंपोनेंट. ना ही हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही हीट इवॉल्व हो रही है. आइडियल सॉल्यूशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा इन बिटवीन. और फाइनल सॉल्यूशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड इट विल फॉलो अ रॉल्स लॉ. रियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? मोस्ट सिस्टम शोज वेरिंग डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ liquids and temperature. These solutions are known as real solution. Property of real solution हमारे पास ये है कि हीट हमारे पास एब्जॉर्ब और इबाउंड हो जाएगी. हो सकती है केमिकल रिएक्शन जो है अकर होगा इन बिटवीन. फाइनल वॉल्यूम of solution represents the additive property of individual components and it will don't follow the Raoult's law. Example हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन है, and chloroform and acetone solution. There is another terminology volatility जो कि हम बहुत जो है यूज कर रहे होंगे in order to explain the distillation operation. The volatility हमारे पास क्या होती है? Volatility हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की सोल्यूशन में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं as the with respect to another component. कैसे? That is a partial vapor pressure of component A divided by mole fraction of component A in that solution. That is volatility of the component A is equal to PA over XA. For example, a substance A in a liquid mixture has partial pressure PA and its concentration in the mixture is XA on the mole fraction scale. So हम volatility किस तरह डिफाइन करेंगे? इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करके. दैट इज पार्शियल प्रेशर, partial vapor pressure of A divided by mole fraction of that component in the solution. The volatility of a material is in the pure state is equal to the vapor pressure of the material. जो है प्योर मटेरियल की बात कर रहे हैं. प्योर मटेरियल के में हमारे पास जो वोलेटिलिटी होगी मटेरियल की वो किसके इक्वल होगी? वेपर प्रेशर के इक्वल होगी. कैसे? बिकॉज हमारे पास जो प्योर कंपोनेंट है सही, तो इसका मतलब है एक्स ए क्या हुआ? 1 हो गया, तो वी ए कुछ पी ए हो जाएगा. हम रिलेटिव वोलेटिलिटी की टर्म जो है वो अभी बहुत यूज कर रहे होते हैं डिस्टिलेशन में इन ऑर्डर टू, यानी हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं बिकॉज जो है दो कंपोनेंट्स है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स है, तो हम किस तरह इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द वोलेटिलिटी, तो हम जो है बिकॉज एक वन कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट से जो है वोलेटाइल है ज़्यादा सही, तो हम रिलेटिव वोलेटिलिटी की आपस में बात करेंगे इन कंपोनेंट्स की. क्या हम इनकी आपस में रिलेटिव वोलेटिलिटी कितनी है? Consider a liquid mixture containing two components A and B. In such cases, the volatility of one component is expressed in terms of the second, as below. Volatility of component A divided by volatility of component B, and the relative volatility is the ratio between the volatility of component A and component B.
Vapor pressure. Vapor pressure is defined as the pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensed phases, solid or liquid, at a given temperature in a closed system. The equilibrium vapor pressure is an indication of a liquid's evaporation rate. Thermodynamic equilibrium क्या है? It is the systematic study of transformations of matter and energy in system as they approach equilibrium. The word equilibrium implies a state of balance. Azeotropic mixture. Azeotropic mixture को हम जो है constant boiling mixture भी कहते हैं. It is a mixture of special composition giving minimum or maximum boiling point. Then the individual component with minimum or maximum boiling point respectively. Examples are mixture with maximum boiling point के mixture containing 20.2 ml HCl plus 79.8 ml water. A mixture with minimum boiling point is given as mixture containing 95.5 milliliter alcohol plus 4.5 milliliter water. Vapor liquid equilibria. हमारे पास vapor liquid equilibria जो है is very important in this installation. इसमें हम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम की पहले हम बात करेंगे. क्या pressure temperature concentration phase diagram. Let us first consider ordinary binary mixtures. Ordinary binary mixtures, by this is meant that the liquid components dissolve in all proportions to form homogeneous solutions which are not necessarily ideal, and that no complications or maximum or minimum boiling points occur, that is known as azeotropes. We will consider component A of the binary mixture AB as the more volatile, that is the vapor pressure of pure A at any temperature is higher as compared to the vapor pressure of component B. The vapor liquid equilibrium for each pure substance of the mixture is of course its vapor pressure temperature relationship as indicated in the figure. हमने सबसे पहले ordinary binary mixture को consider किया है और हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई एज़ोटोप जो मिक्सचर नहीं बन रहा. फर्दरमोर वी विल कंसिडर कंपोनेंट ए जो है ऑफ द बाइनरी मिक्सचर ए बी. हम कंसिडर कर रहे हैं कंपोनेंट ए एज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट. सो कंपोनेंट बी क्या होगा? वुड बी लेस वोलेटाइल कंपोनेंट एज कंपेयर टू द कंपोनेंट ए. द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम फॉर ईच प्योर सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर हम जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन इट्स वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में. ये डायग्राम गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड की. प्रेशर इसमें हमारे पास y एक्सिस पे है, टेम्परेचर हमारे पास x एक्सिस पे है और ये हमारे पास वेपर प्रेशर डायग्राम हमारे पास गिवन है. हमारे पास यहाँ पे कर्व बना STBEC, पूरी एक लाइन बन रही है और एक TL वाली लाइन बन रही है. क्रिटिकल प्रेशर हमारे पास जो है वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है L पॉइंट पे. ये हमारे पास गैस फेज को बता रहा है ये वाला. ये हमारे पास लिक्विड फेज को बता रहा है दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन फॉर द सॉलिड फेज. For binary mixtures, an ideal variable concentration must likewise be considered. Mole fractions are the most convenient considerations terms to use, and throughout this discussion, X will be the mole fraction or more volatile component substance A in the liquid, and Y steric is the corresponding equilibrium mole fraction of A in the vapor. Complete graphical representation of the equilibrium requires a three-dimensional diagram. हमारे पास three-dimensional diagram चाहिए होती है in order to get the better understanding.
in the form of the graphical representation. The curve marked PA is the vapor pressure curve of A. PA हमारे पास vapor pressure है of curve, vapor pressure curve है of A. Lying entirely in the nearest composition plane at x equals to 1, the curve extends from its critical point CA to its triple point TA, but the complications of the solid phase which don't enter into dissociation operations will not be considered. Similarly, curve B हमारे पास is the vapor pressure of the pure component B in the far plane at x equals to 0, जो वहाँ पर pure है. The liquid and vapor regions at composition between x equals to 0 and x equals to 1 are separated by a double surface which extends smoothly from PA to PB. The shape of this double surface is mostly readily studied by considering sections at the constant pressure and constant temperature, examples of which are shown in the figure. अच्छा, इसमें हमारे पास ये वाला कर्व हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए का है एट एक्स इक्वल्स टू 1, और दूसरा कर्व हमारे पास पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी का है एट एक्स इक्वल्स टू 0. इन दोनों कर्व के बीच में हमारे पास जो है एक डबल सरफेस्ड कर्व बना हुआ है. सही, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वाली डायग्राम है, और एक हमारे पास जो है अदर उस सेक्शन पे कांस्टेंट प्रेशर सेक्शन पे हमारे पास जो है टेम्परेचर, और ये हमारा एक्स वाई डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एक्स, और ये वाली एक कांस्टेंट टेम्परेचर सेक्शन में वहाँ पर प्रेशर वर्सेस एक्स डायग्राम. तो सबसे पहले हम ये वाली डायग्राम कंसिडर करें, दैट इज जो लोअर जो डबल कर्व बना हुआ है. Consider first a typical section at constant figure at constant pressure. Figure 9.2a, the interaction of the double pressure plane produces a looped curve without maxima or minima, extending from the boiling point of pure B to depth of the pure A at the pressure in the question. The upper curve provides the temperature vapor composition Ty static relationship हमारे पास given है. Ty static relationship हमारे पास अपर कर्व वाला बता रहे हैं, सही, और लोअर कर्व हमारे पास Tx जो है रिलेशनशिप बता रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर, और लिक्विड कंपोजिशन हमारे पास बता रहे हैं लोअर कर्व, और अपर कर्व हमारे पास जो है टेम्परेचर और वेपर कंपोजिशन बता रहे हैं. Liquid and vapor mixtures at equilibrium are at the same temperature and pressure throughout, so that the horizontal tie lines such as line DF join equilibrium mixtures at D and F. Liquid and vapor mixtures जो है वो equilibrium पे are at the same temperature. equilibrium पे same temperature पे होंगे, तो वहाँ पर DF जो है क्या line बताइए, that they are at the equilibrium. At the same temperature there will be equilibrium, तो हम tie lines जो है वो draw करेंगे at several temperatures पे. So यहाँ पर DF, HG, LK, NM, they all are the at the equilibrium, सही. और इन इक्विलिब्रियम लाइंस ये जो हमने ड्रॉ की हैं इन्हें हम टाई लाइंस कहते हैं, और यहीं पे हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम पे ही हमारे पास जो है यहाँ पे सेपरेशन होगी. There are an infinite number of such tie lines for this diagram. A mixture on the lower curve as at point D is a saturated liquid. मिक्सचर जो है लोअर कर्व पे एट पॉइंट डी पे सैचुरेटेड लिक्विड है, और मिक्सचर जो है ऑन द अपर कर्व एट पॉइंट एफ पॉइंट पे हमारे पास जो है सैचुरेटेड वेपर्स हैं. आ मिक्सचर एट ई, यानी डी और एफ के बीच में जो ई पॉइंट है,
उस पे हमारे पास टू फेज मिक्सचर है जो कि हमारे पास, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास सम अमाउंट ऑफ लिक्विड और वेपर मिक्सचर हमारे पास होगा, दैट इज टू फेज मिक्सचर एट पॉइंट ई consisting of a liquid phase of composition at D and a vapor phase of composition at F। यानी ई पॉइंट पे हमारे पास जो है लिक्विड और वेपर फेज की दोनों की कंपोजिशन हमारे पास होंगी एट पॉइंट ई पे कुछ अमाउंट, such that the average composition of the entire mixture is represented by E point। Furthermore, now the relative amounts of the equilibrium phases are related to the segments of the time lines। इनके रिलेटिव अमाउंट से हम एट द इक्विलिब्रियम फेसेस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम लाइंस पे, सेगमेंट्स ऑफ द टाइम लाइन, दैट इज मोल्स ऑफ टी ओवर मोल्स ऑफ एफ हम किस तरह बता सकते हैं, दैट इज लाइन ई एफ ट्रैवल लाइन डी एफ। Consider a solution at G in a closed container which can be kept at constant pressure by moving a piston. The solution is entirely liquid. If it is heated, the first bubble of vapor forms at H and has the composition at J. Richer in the more volatile substance, and hence the lower curve is called the bubble point temperature curve। हमने consider किया solution at point G, that is this point क्लोज कंटेनर में, जो कि हमारे पास क्लोज कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर पे से बाय मूविंग अ पिस्टन, मूविंग पिस्टन को हम मूव करते हुए कांस्टेंट प्रेशर पे से द सोल्यूशन इज एंटायरली लिक्विड एट पॉइंट जी पे हमारे पास एंटायरली लिक्विड है सोल्यूशन। इसे हम हीट किया इस लिक्विड को, सो वो पॉइंट जहाँ पे द फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म होगा, सही है, वो पॉइंट कौन सा, एच पॉइंट। और इसे हम कहेंगे बबल पॉइंट एंड हैज अ कंपोजिशन एट जे। जे पे हमारे पास जो है एच पे हमारे पास जो है वेपर होगा, उसकी जो लिक्विड कंपोजिशन जो है वो जे पे है एंड हैज अ कंपोजिशन एट जे विच इज इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। Furthermore, and hence the lower curve हमारे पास क्या होगा, बबल पॉइंट टेम्परेचर कर्व, और अपर पॉइंट हमारे पास अपर कर्व जो हमारे पास ड्यू पॉइंट वाला होगा, कैसे होगा मैं बताती हूँ। यहाँ पर एज मोर ऑफ द मिक्सचर इज वेपराइज मोर ऑफ द वेपर फॉर्म्स, जैसे हमारे पास मिक्सचर और वेपराइज करेंगे, सही है। एच पॉइंट कौन सा था, वो पॉइंट था जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वेपर जो है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द वेपर जो है बॉइल्स हुआ, सही। देन हम और हीट होगा यानी टेम्परेचर राइज होगा, सही, तो क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और पॉइंट ओ पे हमारे पास कम्प्लीटली वेपराइज जो है वेपर होगा। Furthermore, as more of the mixture is vaporized, more of the vapor forms at the expense of the liquid, giving rise, for example, to liquid L। मोर जो मिक्सर बॉयल होगा, सही, मोर जो है लिक्विड जो है इनटू वेपर कन्वर्ट होता जाएगा एंड इट्स इक्विलिब्रियम वेपर के से लिक्विड बॉयल होता गया, सही। सो हमारे पास जो है इसकी लिक्विड कंपोजिशन एल में आ रही है और जो वेपर कंपोजिशन के में आ रही है, दैट इज एक्स इन एल एंड वाई जो हमारे पास के में। Although the composition of the time mass is still the original at point G. The last drop of the liquid vaporizes at M, जो यहाँ पर last drop जो है liquid का वो vaporize हो रहा है at point M पे, और उसकी जो relative composition है वो point N पे हम जो है find out कर सकते हैं। Superheating the mixture, furthermore हम superheat करेंगे इस mixture को
एट पॉइंट एम पे फर्दरमोर, तो हमारे पास जो पाथ जो फॉलो हो रहा है वो पाथ जो है वो एमओ पाथ फॉलो हो रहा है. सो द मिक्सचर हैज वेपराइज्ड ओवर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम H to M. H to M पे हमारे पास जो है हमारे पास जो है एक ड्रॉ हुई है डॉटेड लाइंस जो हमारे पास बता रहे कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है. और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज हमारे पास जो है वेपर जो लिक्विड जो है लिक्विड वेपर कंपोजिशन वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू द मोर वेपर्स ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर. The mixture has vaporized over a temperature range from H to M. Unlike the single vaporization temperature of pure substance, thus the term boiling point for a solution ordinarily has no meaning since vaporization occurs over a temperature range that is from the bubble point to the dew point. This H point is the bubble point, M point is the dew point. G point is a super saturated liquid mix point है और saturated vapor point is point O. अपर कर्व हमारे पास ड्यू पॉइंट हमारे पास है ड्यू पॉइंट कर्व. If the mixture at O is cooled, अगर हमारे पास मिक्सर जो है O पे हमने कूल किया और the phenomena reappear in the reverse order, कंडेंसेशन होगी फॉर एग्जांपल स्टार्ट्स एट पॉइंट M पे हमारे पास दैट इज द अपर कर्व ऑफ द दिस डायग्राम. इस पे हमारे पास जो है फर्स्ट वेपर जो है वो जो कंडेंस्ड होगा इन द लिक्विड. सो दिस इज द ड्यू पॉइंट कर्व. एंड फर्दरमोर टेम्परेचर ड्रॉप अगर हम इसे और जो है कूल करते जाएंगे टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा और जो है फर्दरमोर और जो है कंडेंसेशन होगी से और जो हमारे पास पॉइंट G पे जो है अगर और जो है कूल डाउन करेंगे इस मिक्सचर को तो हमारे पास जो है पॉइंट G पे दोबारा से हमारे पास अचीव हो जाएगा saturated liquid. If a solution like that at H is boiled, furthermore अगर solution जो है at point H is boiled in an open vessel on the other hand with the vapors escaping into the atmosphere, since the vapor is richer in the more volatile substance, the liquid residue must therefore become leaner. The temperature and composition of the saturated residual liquid therefore move along the lower curve towards N as the distillation proceeds. वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का पोजीशन हम ड्रॉ कर सकते हैं in terms of the y-x diagram, that is mole fraction of component in vapor and in the liquid phases. Point P हमारे पास on the diagram represents the tie line DF. For example, since the vapor is richer in more volatile substance, the curve lies above the 45-degree diagonal line which has been drawn in for a comparison. Y-x जो कर्व है that is y-x कर्व का ये जो कर्व है ये है और जो डायगोनल लाइन हम बनाएंगे वो हम जो है 45 डिग्री के एंगल में बनाएंगे जो स्टार्ट होगी जहाँ पर 0 पॉइंट से और एंड होगी जहाँ तक जो हमारे पास एट x इक्वल्स टू 1. XD जो है हमारे पास जो है डिस्टिल्ड लिक्विड मोल फ्रैक्शन है ऑफ कंपोनेंट A और जो है जो कि हमारे पास स्टॉप से अचीव होता है और YF स्टेरिक हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन है ऑफ कंपोनेंट एट द इक्विलिब्रियम. द ग्रेटर डिस्टेंस relative volatility the greater the distance between the equilibrium curve and the diagonal. जहाँ equilibrium curve और diagonal के बीच में जितना ज़्यादा distance होगा the greater the difference in liquid and vapor composition, उतना ही हमारे पास liquid and vapor composition के बीच में हमारे पास जो है difference होगा और जितना ज़्यादा
हमारे पास जो है जो इक्विलिब्रियम कर्व और डायगोनल के बीच में डिफरेंस है। एंड द इजियर द सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, और इतनी ज़्यादा जो है डिस्टिलेशन से सेपरेशन इजियर होगी। वन न्यूमेरिकल मेजर ऑफ दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वोलेटिलिटी। हम रिलेटिव वोलेटिलिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ द concentration ratio of component A with respect to B in one phase to the another phase. हम relative volatility को in terms of the mode fraction हम define कर सकते हैं as the y stack over 1 minus y stack divided by x divided by 1 minus x. The value of relative volatility will ordinarily change as x varies from the 0 to 1. हमारे पास जो है x जो है जैसे mode fraction of कंपोनेंट ए इन लिक्विड, जैसे हमारे पास 0 से 1 जो है चेंज होता जाएगा, तो इसी तरह हमारे पास जो रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू है वो हमारे पास चेंज होती जाएगी। इफ वाई स्टेरिक दैट इज इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन जो है कंपोनेंट का वो अगर x के इक्वल है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड के इक्वल है, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0 और 1 जो देन रिलेटिव वोलेटिलिटी इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास जो f अगर हमारे पास वाई स्टेरिक इक्वल्स टू x है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A in vapor is equal to the mole fraction of component A in liquid. In that case हमारे पास अगर जो है क्या होगा, रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे बनाएगी, हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 9.2 में, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द रिलेटिव वोलेटिलिटी में। इस केस में हमारे पास सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बिकॉज इन दोनों इस केस में हमारे पास जो है वाई स्टेरिक एक्स जो दोनों ही सेम है, रिलेटिव वोलेटिलिटी 1 है, यानी दोनों ही इक्वली हमारे पास जो है वोलेटाइल है, इक्वली वोलेटाइल होंगे। इसमें ये नहीं होगा कि एक ज़्यादा वोलेटाइल है और दूसरा लेस वोलेटाइल है, ऐसा नहीं होगा। The larger the value of relative volatility above unity, the greater the degree of the at higher, अच्छा, and then increased pressure है। अच्छा 5 मिनट की ब्रेक ले रही हूँ, देन मैं जो आगे से कंटिन्यू करूँगी फिर से।